students, let us start a new chapter comparing quantities of NCERT Class 8th Maths. So, first of all, we need to understand that we can compare the quantities only if they are of same kind. Suppose I need to compare the height of two boys. I can easily compare them because both are same thing. Both are human beings. But if I have to compare the weight, so for this we need to check the weight. Whatever we are comparing, they must be of same kind. If one weight is in kg and the other weight is in milligram, so we have to make both the quantities of same kind. Either I can compare the kilogram to kilogram only, or milligrams to milligrams only. So, in this chapter, we are going to deal with some properties related to ratio, percentage, simple interest, compound interest, and profit and loss, discount, etc. So, in this chapter, we will come to know in detail about all these topics. Let us start the first exercise of this chapter. Now, let us start the first question. This is, we have to find the ratio of the speed of cycle to the speed of a scooter. For this, you have to first check whether both the quantities of same kind. Speed of cycle is 15 km per hour. Speed of scooter is also 30 km per hour. I can see both are in kilometer per hour. Units are same. So, I can easily compare these two quantities. So, ratio is what? Ratio of speed of cycle to the speed of scooter. Speed of scooter. So, what is the speed of cycle? 15. Scooter is 30. Cross cut, it will give you 1/2, or the answer is 1:2. Let us move to the next question. Now solve the B part. 5 meters to 10 meter. Both are same quantities, meter to meter. So 5 meter to 10 meter. I can cross cut 2 times. So 1:2 is the answer. You can see here, while solving the ratio sums, I am also checking the quantities. They must be of same kind, and also ratio has no unit. They can cross cut, like meter to meter cross cut. So it gives you the constant 1/2 only. That means 1:2. Okay, so ratio has no unit. 50 paise to rupees 5. So this is in paise, but this is in rupees. So 1 rupees is equals to how much paisa? 100 paise. Paise से paise cut, zeros to zeros cut, 5 to 5 cut. 1:10 is the answer for this part. Now let us move to the next question. Now let us come to the question number 2. Convert into percentage. So I have written the first part, 3:4. So understand this thing, whenever we have to convert anything into percentage, यानी कि हमें percentage बनाना है, so 100 से multiply करेंगे. So I have multiplied 3/4. 3:4 means 3/4. 3/4 into 100. This is 3:4. This is 3/4 into 100. Cross cut it, it will give you 75%. Similarly, 2:3. 2:3 means 2/3 into 100. So when you simplify, you will get 66 2/3%. So जब भी convert करना हो percentage में, always multiply the quantity with 100. Otherwise percent माने क्या होता है? Anything represented in the form of upon 100. Percent means upon 100. Okay, so ये हो गया आपका question number 2. Now let us come to the question number 3. What is question number 3? 72% of 25 students. यहाँ पे हमारे पास number नहीं है. We don't have the number of students, but we have only the percentage of students. What is the percentage? 72% of 25. Total students हैं 25, जिसमें से 72% are good in
maths. How many are not good in maths? So understand this कि 72% of 25 are good in maths. So percentage of students not good in maths, क्योंकि हमसे पूछ रहा है how many, number of students पूछ रहा है, how many are not good in maths. So I can solve this question in two ways. So first method मैं आपको यहाँ पे बता दूँ पहले तो 72% हैं good, so percentage of students not good in maths, not good, percentage of students not good in maths. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल परसेंट 100 लेते हैं, 100 में से 72 को माइनस कर देंगे. सो यू विल गेट 8 and 9 minus 7 is 2, 28%. Now 28% of 25 are not good in maths, not good in maths. तो हमने परसेंटेज में लिखा लिया, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो 28% कौन से, 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स. सो 28 अपॉन 100 इंटू 25 कर देंगे. 25 4 ज़ा 100, 4 7 ज़ा 28. सो तो 7 आपका आंसर आ रहा है. सो यू कैन राइट हियर 7. दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not good in maths. This is the first way. Second method हम कैसे और इसको solve कर सकते हैं, ये मेरा first method था. Second method में हम क्या करेंगे, आप ये देखो 72% of 25 are good in maths. तो यहाँ से जो परसेंटेज में हमें पता है क्वांटिटी, परसेंटेज में पता है, नंबर पे नहीं पता. सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाल लें. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे जो गुड होंगे मैथ्स में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स, ये हमारा कैसे आएगा, 72% मतलब अपॉन 100, परसेंट मतलब अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25 किया, ये आपने काटा, 25 4 ज़ा 100 एंड हाउ मेनी टाइम्स इट विल गिव यू 18. सो 18 स्टूडेंट्स हमको मिल गए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर गुड इन मैथ्स. ठीक है, सो 18 है. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 25. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25. 25 में से गुड स्टूडेंट्स कितने हैं, मैथ्स में जो गुड हैं वो 18 है. सो स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स, नॉट गुड इन मैथ्स. ये मैं इधर लिख दूँ, somewhere you are not able to see here. टोटल स्टूडेंट्स 25 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स ये है. सो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 25 में से 18 माइनस कर देंगे. 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स. ये एक हमारा दूसरा तरीका हो गया. सो इन दिस वे आई कैन सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ let us come to the next question. This is question number 4. A football team won 10 matches. Means कि कोई भी फुटबॉल टीम है उसने टोटल मैचेस कितने जीत लिए, 10 मैचेस उसने जीते आउट ऑफ द टोटल मैचेस. इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ विनिंग मैचेस भी हैं 10 और परसेंटेज में भी गिवन है 40% मैचेस भी है जो जीते हुए, मतलब 10 मैचेस हैं टोटल में से 10 मैच जीते हैं जिनका परसेंटेज भी क्या मिलता है 40%. सो इट इज़ आस्क्ड हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल. सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा हाउ यू कैन सॉल्व कि आपके पास 1 मैचेस है, यानी विनिंग मैचेस हैं 10 और विनिंग परसेंटेज भी हैं. सो जब दोनों क्वांटिटीज़ हों सो वेरी इजी हो जाता है इसको फाइंड आउट करना कि टोटल कैसे निकालेंगे. सो आप ये करोगे 40% ऑफ द टोटल मैचेस कितना आ रहा है, टोटल मैचेस हमें नहीं पता, x मान लेंगे. परसेंटेज पता है कितने जीते हैं 40%. सो 40% कौन से मैच, 40% ऑफ द टोटल मैच कितने आते हैं इनके, 10 आते हैं. नंबर कितना है विनिंग मैच का
10 है, तो 40% ऑफ द टोटल मैचेस इज 10. सो 40% मतलब अपॉन 100 ऑफ द टोटल मैचेस हमने मान लेंगे कि लेट द टोटल मैचेस इज x. टोटल मैचेस को हम ले लेते हैं x. ओके, सो x ले लिया. दिस इज इक्वल्स टू कितने टोटल मैचेस जीते, नंबर में कितने हैं, 10 है. सो 0 से 0 कौन, ये वाला 10 आपका ऊपर शिफ्ट करेगा, 100 हो जाएगा. 100/4, 4 से क्रॉस कट 25. तो टोटल मैचेस कितने हो गए इसके, 25. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. If चमेली had ₹600 left, so money left कितना है चमेली के पास, वो हम लिख लेते हैं. मनी लेफ्ट इज ₹600. 600 इज द मनी लेफ्ट. लेकिन ये कैसे लेफ्ट है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ अ मनी. ये मनी लेफ्ट है 600, कितने परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड कर दिया गया, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट. परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट, ये कितना है परसेंटेज इसका, 75%. 75% ऑफ द मनी इज स्पेंट. ओके, मनी लेफ्ट है मतलब इतना बच रहा है और मनी स्पेंड किया गया 75%. हमारे पास अमाउंट नहीं है, परसेंटेज पता है हमारे पास. हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, मीन्स इसमें टोटल मनी पूछा गया है कि उसके पास कितना रहा होगा, टोटल मनी कितना रहा होगा. अभी उसके पास 600 बच गया है. ठीक है, ना तो टोटल पता है और ना ये पता है कितना उसने खर्च कर दिया, कितना उसने स्पेंड किया. ठीक है, बट लेफ्ट मनी है हमारे पास. सो इसको कैसे करेंगे हम, आप ये देखो कि आपके पास परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट क्या है, 75. सो परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट निकाल लीजिए. 75% इसका स्पेंट है. सो कितने परसेंटेज बचा होगा, 100 से 75 को माइनस कर देंगे, 25% मनी ही उसके पास बचा है. अब ये 25% ऑफ द टोटल मनी, ये जो बचा है परसेंटेज में 25%, ये कितना है, 600 है. ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे. टोटल मनी हमें नहीं पता, टोटल मनी को हम मान लेते हैं x और दिस इज इक्वल्स टू 600. सो ये x हमारा कैसे आएगा, क्रॉस कट करके आएगा, x इक्वल्स टू 600 into 100 by 25. 25 4s are 100, 2400. सो टोटल मनी उसके पास कितना आया, टोटल मनी है था उसके पास ₹2400. सो दिस मच मनी वॉज लेफ्ट.